Hello everybody and welcome to the channel guys, and thank you so much for joining me. So let's get going and start the Fahman's birthday message, birthday reading. So let's see with this birthday what journey, what phase of life is he's stepping into. So this deck is the Sacred Travelers deck by Dennis Lin. एंड हम सब जानते हैं कि विथ एवरी बर्थडे वी आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू जर्नी. तो ये जर्नी, ये बर्थडे फहमान के लिए कौन सी जर्नी लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं. लेट्स सी. यस, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग. ओके, सो थिंग्स विल स्मूथली सेल फॉर हिम इज व्हाट वी नो. राइट, अभी आपने उसका वीकली गाइडेंस देखा होगा. यू वुड हैव सीन हिज वीकली गाइडेंस दैट ही इज टेकिंग अ प्लंज इनटू द अननोन विद दिस बर्थडे. ही इज स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी विद द फूल कार्ड. एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से अब वो दूरी बढ़ा रहा है और उसको छोड़ के अब वो आगे बढ़ रहा है. यहाँ पे भी ठीक वही बात है, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग. नॉट एग्जैक्टली बट यस, धीरे धीरे जैसे वो एनर्जी चेंज होगी, आगे बढ़ेगा, ये वो पूरे फ्लो में आ जाएगा. सो यही तो कमिंग ईयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट फहमान बीइंग इन द फ्लो. ओके, सो लेट्स सी what are the three things that he can expect in his life. This is the energy, this is the overall the energy of his new year. Milk and honey and rainbow and blessings. Do you see this how in flow है. जब in flow में हो आप, जब आप flow में हैं, जब आपकी life flow में आ गई है, जब आपका नया बर्थडे आपको flow में ले आया है, in alignment with the universe, तो definitely there will be rainbow, there will be wish fulfillment, there will be milk and honey and enjoy things. Okay, so बहुत सारा cards आ सकता था, लेकिन क्योंकि वो उसकी life अब alignment में आ रही है, his life is coming into alignment, his wishes will be fulfilled. Rainbow is always about, wish fulfillment. Milk and honey is all about, good times, abundance, good things happening for him, right? चलो देखते हैं. And Loyal Heart. Do you see this? How beautiful is this card? And this card is 35. This is 51. This is 35. So close to his birthday. Close to his birth year, I think. Close to his age, maybe. Loyal Heart. I don't know. I wonder if it means that he will get married this year, because this is a couple here, and they are wearing this crown. So maybe he can get married this year. You never know. Maybe he will find somebody loyal to his heart. So I think ये वाला साल जो है, ये जो फहमान का, it will bring things in alignment for his professional life with rainbow blessings, as well as for his personal life with relationships, where he will be with his loved one, loved heart, loyal heart. Okay, so somebody who values him, तो उसके रिलेशनशिप के लिए भी ये साल कुछ डेफिनेटली एक पॉजिटिव लेके आ रहा है. हिज रिलेशनशिप्स विल गेट इनटू फ्लो, मे बी विद दिस दिस उड़न खटोला बोलिए आप, या फिर ये जो कारपेट उड़ रहा है हवा में, it's more like he's going to be on cloud 9. Things will happen for him. तो आप ये देख रहे हो कि कैसे उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, वो लेफ्ट अलोन वाली एनर्जी से फीलिंग अनसपोर्टेड वाली एनर्जी से थिंग्स नॉट वर्किंग आउट वाली एनर्जी से. दिस इज व्हाट इट इज. ऑल राइट, सो ये मोटा मोटा उसकी एनर्जी रहेगी इस बर्थडे में. गिव मी अ सेकेंड. So definitely you can understand this, like loyal heart is always all about his relationships, his relationships coming full circle, and especially related with heart, a relationship related with heart, partnership, a soulmate, somebody जो कि
लॉयल हार्ट में है, जो कि उसको समझ, एनीबडी, दिस कुड बी सुम्बुल, दिस कुड बी एनीबडी, आई डोंट नो लाइक रियली, बट डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको चैनल मैसेज में भी बोला था कि दिस रीडिंग इज अबाउट फामान एंड दिस रीडिंग इज बिटवीन फामान एंड स्पिरिट गाइड्स. दिस reading doesn't has to do with anybody else. It is about he and he living his life, uska soul purpose. Of course there are a lot of other people who will support him in his journey, but basically ये साल उसके लिए क्या लेके आ रहा है, एक लॉयल हार्ट लेके आ रहा है. कोई भी जो कि इसकी हार्ट को समझेगा, क्योंकि हमने देखा है कि वो काफी अकेला फील करता है, अनसपोर्टेड फील करता है, अपनी बातों को भी शायद वो शेयर नहीं कर पाता है, तो वो सारी चीजें भी हैं उसकी. तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक है जो आएगा एंड दे आर लाइक वेयरिंग द क्राउन्स, तो शायद उसकी शादी की तरफ भी काफी स्ट्रांग इंडिकेशन है ये कार्ड. एक नया सवेरा भी आप यहां पे देख रहे हो. तो करियर और रिलेशनशिप में दोनों फ्रंट में एक बैलेंस उसकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है. चीजें फ्लो में आएंगी उसके लाइफ में एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इन फ्लो, क्योंकि अभी तुरंत आपने देखा था क्या कि उसकी लाइफ एक हैंग्ड मैन के पोजीशन पे आ रही थी, राइट? आपने देखा था हैंग्ड मैन, राइट? यहां पे हैंग्ड मैन था ना, हैंग्ड मैन. चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी. तो अब क्या होगी इस वीक, या अभी तक की एनर्जी क्या है, हैंग्ड मैन की थी. अब वो इन फ्लो, चीजें आप फ्लो में आएंगी, आगे बढ़ना स्टार्ट होगा. तो आगे बढ़ने स्टार्ट होने से सबसे पहले क्या होता है कि आप बेबी स्टेप्स लेके नेगेटिविटी से या डार्कनेस से, और चीजें काम नहीं कर रही थी उससे दूर जाते हैं, और धीरे धीरे आप रोशनी की तरफ पहुंचते हैं, चीजें स्टार्ट होना होता है. तो बेसिकली यू स्टार्ट मूविंग एंड यू रीच हियर. सो हैंग्ड मैन एंड देन लाइफ फ्लो में आने वाली है उसके इस साल, which is a very again connecting the things. चलिए देखते हैं ये जो दो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए, जो लाइफ में फ्लो आ रहा है, रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रहा है, लॉयल रिलेशनशिप मिलने वाला है, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप शायद उसके लाइफ में आने वाला है. अब ये कोई भी हो सकता है डेफिनेटली. तो ये सारी चीजें हैं. यहाँ पे भी लग रहा है कि करियर में काफी अच्छा होने वाला है. When do you enjoy the milk and the honey? When things are very bright and happy, no? तो देखते हैं कि 3 चीजें उसे क्या करनी चाहिए to really make these blessings coming in his life happen to him. So let's see the 3 things that should really happen that he can take actions for. क्योंकि these are the beautiful stuffs that universe has planned for you. लेकिन जो भी universe plan करता है उसके लिए हमें भी अपने inspired actions देने पड़ते हैं ना. Otherwise we are not ready to receive. He also has to allow himself to receive it. चलो ये वाला कार्ड आया है. And this is time to collaborate. Maybe he can, get out of his ego and he's like, be ready to network, collaborate, उस तरह की बातें. Truth transcends illusion. Okay. See the bigger picture. Spirit has a plan for everything. Okay. तो इस कमिंग न्यू ईयर में, उसके बर्थडे ईयर में क्या करना उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ये दोनों तो ब्लेसिंग्स क्लियरली आ रही है, उसका लाइफ अलाइनमेंट में आ रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है. और 3 चीजें जो उसके लिए करना इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइक इंस्पायर्ड एक्शंस लेना जो बोलते हैं हम, वो चीज हो गई कि टाइम टू कोलैबोरेट विद द राइट पीपल. ओके, ही नीड्स टू कोलैबोरेट विद द राइट पीपल. दूसरी चीजें ये हो गई, क्योंकि देखो चीटी जो है बहुत मेहनत कर रहा है, पर क्या आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया था. सो यू नीड टू कोलैबोरेट विद द राइट पीपल. दूसरी चीजें हैं कि ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, द ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन. अगर किसी तरह का इल्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी. तो ये साल जो है उसका काफी सारा क्लैरिटी उसके लाइफ में लेके आने वाला है, ट्रुथ लेके आने वाला है. जहां पे उसके जो इल्यूजन्स थे ना, या फिर कुछ भी चीज को हम जो सच मान के बैठ गए हैं पर उसमें ट्रुथ नहीं है, तो वहां पे उसके लाइफ में क्या आएगा, क्लैरिटी आएगा. उसको चीजों को समझने में बहुत हेल्प करेगा और उसको एक सही डायरेक्शन में उसका मार्गदर्शन करेगा. ट्रुथ आएगा उसके लाइफ में, काफी चीजें उसको पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी तभी तो वो फ्लो में आ पाएगा, स्टक नहीं रहेगा. हम स्टक कब रहते हैं, हैंग्ड मैन की पोजीशन में हम कब रहते हैं? व्हेन डू वी स्टे इन अ हैंग्ड मैन पोजीशन?
not moving backward, not moving forward. When we are so confused, we don't know what to do in our life. And that is when we are so much caught in our own illusion, conflicts, the fight between our soul and ego, and all the people, commotion created by a lot of people around us, that we are so confused, we don't know what to do, and therefore we don't move. We don't take a step forward, we don't take a step backward because we are so scared. And this year is going to bring him lot of truth, जहाँ पे उसके जो भी confusions थे ना वो खत्म हो जाएगा, और वो भी एक पॉजिटिव वे में उसकी लाइफ फ्लो में आ जाएगी. क्यों? क्योंकि जब कंफ्यूजन खत्म हो गया है क्लैरिटी से, तो क्या है, अब उसे पता चल गया है जो भी है, और वो एक सही डायरेक्शन में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकता है, एक सही जगह से कोलैबोरेट कर सकता है. और यहाँ पे क्या चीज करना जरूरी रहेगा उसके लिए, एक बिगर पिक्चर देखना जरूरी रहेगा, राइट. जो भी डिसीजंस करना है उसको लाइफ में एक बिगर पिक्चर करके, एक बिगर पिक्चर का मतलब हो गया कि instead of kind of taking any shortcuts, maybe take something that will really add value to you. और ये सारी चीजें वो डेफिनेटली कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अब क्लैरिटी मिल गई है, इल्यूजन्स खत्म हो गए हैं, ट्रुथ आ गया है. Do you understand this? So this is how it is working out for his birthday. Let's pull the blessings for him from our Fae Forest phase. So we will pull 3 blessings for him, okay? So this was the oracle guidance for him. Blessings coming for Farman for his new birthday year. Okay, so what is this? This is difficult to read. The light is not that much. I have no idea what is this. Okay, connect the spirit, connect to the spirit and energy of your local landscape. Seek enchantment. Local landscape. What does this mean? यहाँ पे क्या है? Not all things are as they seem. Trust in your intuition. तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो कार्ड है, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन. यहाँ पे देखिए, फरमान को बोला जा रहा है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो. बहुत सारी इल्यूजन्स हैं आसपास में उसके, ठीक है. तो इस गाइडेंस क्या है? नॉट ऑल थिंग्स आर एज दे सीम. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. जो इंट्यूशन उसको बोल रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है. इल्यूजन में खोने के लिए नहीं बोला जा रहा है. और मोर इम्पॉर्टेंटली उसको ट्रुथ तो पता चलेगा ही जहां पे उसके इल्यूजन्स खत्म होंगे. तो हर चीज वैसी नहीं है जैसा कि दिखती है, तो उसको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए भी एक गाइडेंस दिया जा रहा है उसको. लेट्स सी. मे बी वो जिन लोगों को ट्रस्ट करता है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर गाइडेंस आया है, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन. शायद उसको किसी की रियलिटी पता चलेगी, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है और वो भी उसी कार्ड के ऊपर में है, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन. और यहाँ पे क्या है, हर चीज या हर इंसान जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है. तो यहाँ पे उसको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए. यहाँ पे भी है कि सही लोगों से टाइम टू कोलैबोरेट. और यहां पे देखते हैं सीधा बिगर पिक्चर में क्या गाइडेंस आ रहा है. क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, लीप द हेज, गो ओवर द वॉल. यानी कि जस्ट गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू. ये उसका गाइडेंस है. क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, लीप द हेज, गो ओवर द वॉल. Yeah, this is his guidance.
नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आई होप, क्योंकि यहाँ पे इन फ्लो उसकी लाइफ न्यू ईयर में उसके फ्लो में आ रही है. यू नो हिज लाइफ इज कमिंग इन टू फ्लो वेयर ही इज बीइंग ब्लेस्ड विद दिस टू ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स. वन इज for his career where he's getting all the milk and the honey and the cream, some wish fulfillment in his career, new rise of the sun in his career, and not just that but he's also being blessed with a beautiful loyal relationship in his personal life. ठीक है ना. तो यहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि जब इतनी सारी चीजें आ रही हैं तो आपके लिए भी कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सही लोगों से कोलैबोरेट करो. ठीक है. दूसरा है कि जो जैसा दिखता है या जो चीजें वैसी दिख रही हैं वैसी ही नहीं है. अपनी इंट्यूशन की सुनो जो तुमको गाइड करता है सही डायरेक्शन में. ये आने वाले साल में उसको डेफिनेटली काफी सारा ट्रुथ पता चलने वाला है जो कि सारे इल्यूजन्स को हटा देने वाला है. और दूसरी चीज ये बोला जा रहा है कि गो गन्स ब्लेजिंग. इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स आ रही है, तुम्हारा लाइफ जो फ्लो में आने वाला है, अलाइनमेंट में आ रहा है, तो यू गो फुल थ्रॉटल. वो जो यहाँ पे बहुत हमेशा सोचता रहता है ना अनसपोर्टेड है और इज लाइक यू नो बहुत ही अपने अपने में रहना, या फिर ही शुड बी लाइक मोर ओपन. एंड ही जैसे कि उसका गाइडेंस भी आया है ना, लेट योर सेल्फ रिसीव, यानी कि ये सोचना कि मैं तो सबका अच्छा कर रहा हूं और फिर उसमें ही बस रहना नहीं. यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू कोलैबोरेट, राइट. यू हैव टू कम आउट ऑफ कि यू नो सम काइंड ऑफ विक्टिम माइंडसेट कि ठीक है मैं तो सबका अच्छा करता हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा. ये सही चीज नहीं है. ओके, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू, बोलते नहीं कि जैसे कि आपको भी हाथ पहले मिलाना चाहिए किसी से. दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड विथ प्रोफेशनल ऑल्सो, प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो, कि आप सही लोगों से बातचीत करिए, सही लोगों से कोलैबोरेट करिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और जस्ट गो आउट, यू नो, जस्ट बी लिटिल मोर ओपन. क्रॉस द थ्रेशोल्ड, लीप द हेजेस, गो ओवर द वॉल. यानी कि थोड़ा सा लाइफ में एनर्जी लाके, थोड़ा सा एक वॉन्ड एनर्जी लाके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के थोड़ा सा यू नो एक्शन लो अपने पॉजिटिविटी की तरफ. क्योंकि एक्सक्यूज मी, ये तो यूनिवर्स ने उसके लाइफ को बोला है कि इन अलाइनमेंट आएगा, ब्लेसिंग्स दोनों तरफ से दिया है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में. लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे कि नहीं सब कोई मेरे पास ही आएगा, तो कैसे काम चलेगा. हमें भी 50% यूनिवर्स वर्क्स एंड 50% यू हैव टू वर्क, एंड देन ओनली थिंग्स हैपन गाइज. और यहाँ पे आपने गाइडेंस देखा है कि स्पिरिट हैज अ प्लान, बट येस देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट यू हैव टू डू. यूनिवर्स ने तो ये 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आई है, लेकिन आपके लिए भी एक्शन स्टेप्स दे दिया है. सही लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कोलैबोरेट करिए. जो तुम जिसको जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, चीजों को ठीक से समझो, राइट. ये और दूसरी चीज है गो गन्स ब्लेजिंग. गो गन्स ब्लेजिंग इंस्टेड ऑफ ऑलवेज डाउटिंग योर सेल्फ और सोचना कि ओके मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा. ऐसे नहीं काम होता भाई. गो सही लोगों से मिलो, कोलैबोरेट करो, शो देम दैट यू कैन डू इट. So I hope that you understand this. These are his action steps, and these are the blessings coming for him in the new year. So this is the guidance of birthday blessings coming for Farman. Now in the next video, we will look out the energy breakup for the coming 1 year. So let's see. This is the mota energy. You know, major framework. उसकी life flow में आएगी, blessings मिलेगी, relationship में भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, loyal friends मिलेंगे. लेकिन अब loyal relationships बनेगी, लेकिन अगर आप गलत लोगों को ही की बातों में आओगे तो फिर ये लॉयल्टी वाली जगह आप नहीं बना पा रहे हो ना. यूनिवर्स वांट्स टू गिव दिस टू यू, बट यू ऑल्सो हैव टू स्टॉप ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल. यू ऑल्सो हैव टू बी यू नो मोर प्रोएक्टिव, मोर एनर्जी दिखाना है. तभी तो, क्योंकि शोबिज इज ऑल अबाउट यू नो बीइंग कॉन्फिडेंट एंड शोइंग दैट यू नो वट एवर मनी यू पुट ऑन मी यू विल गेट इट. तो बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जी लेके आगे पॉजिटिव वे में मोटिवेटेड होके वॉन्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है. ऐसा नहीं है कि बस अपना हाथ पैर छोड़ दिया है आपने, हम तो अच्छे हैं, बस ऐसे ही करने से काम नहीं चलेगा. पीपल इन द शोबिज नो डोंट केयर तुम कितने अच्छे हो. यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्मार्ट. ये यहाँ पे वही चीज है. गो गन्स ब्लेजिंग, डू इट. हमेशा अपने आप पे डाउट मत करो, हमेशा अपने एक विक्टिम माइंडसेट पे मत रहो, हमेशा अपनी एक छोटी सी दुनिया मत बना के रहो एंड यू आर लाइक कि आपको जो पैम्पर कर रहा है बस उसी के साथ रहोगे. नहीं, अपने एनर्जी फील्ड को बढ़ाओ, नए लोगों से कोलैबोरेट करो. यही चीज है उसकी. यहाँ पे क्या है, कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, सीक. I don't know why I'm not able to seek intent. देखिए, फहमान को बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में थोड़ी एनर्जी लेके आओ भाई.
बी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स. अगर तुम अपनी एनर्जी इतनी लो करके रखोगे, बेचारा जैसा करके रखोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट ब्यूटीफुल थिंग्स. ये ब्यूटीफुल चीजें यूनिवर्स उसके लाइफ में लाना चाहता है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक, यू नो, I'm not telling about not working hard. Maybe he is working very hard, but he needs to feel good. आप समझ रहे हो, आप वर्क हार्ड करके अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं करते हैं. आप यू हैव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू फील गुड अबाउट, यू नो, सेल्फ वर्थ इश्यूज जो होता है कि यू कैन डू इट, उस एनर्जी से आप चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे. एंड दैट इज द एनर्जी लीप दैट फारमान हैज टू टेक. He has to start believing in himself, and he has to you have to believe in yourself. You have to be positive. You have to be motivated. You are like, I will do it. More like a Sumbul energy. No matter what, I will do it. फारमान को उस एनर्जी में जाना है, क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला गया है उसको, क्रॉस द थ्रेशोल्ड, लीप द हेज एंड गो ओवर द वॉल. यानी कि गो गन्स ब्लेजिंग. और यहां पे भी उसको सही लोगों से कोलैबोरेट करने के लिए बोला जा रहा है, इल्यूजन को दूर करने के लिए बोला जा रहा है. तो ये सारे गाइडेंस है फारमान के लिए गाइज. ओके, सो ही विल नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स if he wants to. Life, universe definitely wants to bring alignment in his life, flow in his life, beautiful cream, honey, blessings in his career, really beautiful relationships, but he needs to collaborate with right people. He cannot go on trusting the wrong people, and he also has to go guns blazing doing it. तभी वो सारी ये blessings जो हैं उसके life में आएंगी. Then he will be open to receiving. याद रखिए 50% universe काम करता है, 50% आपको काम करना पड़ता है, and then you co-create with the universe. So this is what the universe has for you. अब just imagine, इतनी beautiful चीजें अगर universe उसके लिए promise किया है, तो wouldn't anybody work hard on the action steps that he needs to do? लेकिन अगर ये एक्शन स्टेप्स पे काम नहीं होगा, आप गलत लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, और आप एक्शन नहीं, यू नो, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड. हमेशा एक अपनी दुनिया बना के नहीं रहना है, ऐसे नहीं होगा, तो फिर वैसे नहीं हो पाएगा. ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फॉर द बॉय. लेट्स ब्रेक डाउन हिज स्टब्स इन द टैरो गाइडेंस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.